नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में टैलेंट फाउंडेशन वर्कशॉप का उद्घाटन। बिदरी कारीगर शाह रशीद अहमद कादरी को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। कुमारस्वामी का दावा, जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रहा आरएसएस। मंगलूर पुलिस ने आभूषण की दुकान के कर्मचारियों की हत्या करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने किया संसद में जमकर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। सिक्किम में विरोध प्रदर्शन, सिक्किम कहे जाने पर भड़के नेपाल समुदाय के लोग, अमित शाह बोले नाराज न हो। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कल्याण कर्नाटका मानव रिसोर्स एग्रीकल्चर एंड सांस्कृतिक संघ कलबुर्गी द्वारा टैलेंट फाउंडेशन वर्कशॉप का उद्घाटन आज शहर के रंग मंदिर में बसवराज पाटिल सेडम ने किया। यह वर्कशॉप 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रखा गया। इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कादिर, कन्नड़ा साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंदशेट्टी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂಜಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ನಾಡಿನ, ಈ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಲದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೇಡಂಜಿಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರಣೀಯ ಆರ್.ಎ. ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆದರಣೀಯ ಈ ಭಾಗದ ಹರಿಕಾರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರಣೀಯ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾರಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇವತ್ತಿನ ರಂಗಮಂದಿರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಬು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 250 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1200 ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. इस वर्ष के बिदरी कारीगर शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा के बाद लगभग जिले के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके चलते कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कादरी से बीदर के विधायक रहीम खान के आवास पर मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी है। इस अवसर पर केपीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष एम.बी. पाटिल, केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे सहित कांग्रेस के नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का ग्रेजुएशन डे गुलबर्गा में स्थित कॉलेज के नए परिसर में आयोजित किया गया। इस वर्ष बीदर शहर के प्रसिद्ध शायर साहित्यकार स्वर्गीय निसार अहमद कलीम की
पोती और अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के ट्रेजर शफीक अहमद कलीम की पुत्री डॉक्टर फायजा तहसीन ने सफलतापूर्वक अपना ग्रेजुएशन पूरा करने पर ग्रेजुएशन की डिग्री से कार्यक्रम के दौरान नवाजा गया। इस संदर्भ में पोल्ट्री विभाग के पूर्व वैज्ञानिक सईद अहमद कलीम, बीएसआर नेता सैयद मंसूर कादरी और पत्रकार डॉक्टर मसूद ने डॉक्टर फायजा तहसीन को बधाई दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। एक ऊर्जा परिवर्तन महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2023 का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रमुख विकास कार्यों का शुभारंभ और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस CEO के साथ एक गोलमेज बातचीत में भाग लिया। उन्होंने हरिता ऊर्जा क्षेत्र में कई पहल भी शुरू किए। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इथेनॉल समिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण 2013-14 से इथेनॉल उत्पादन क्षमता में 6 गुना वृद्धि देखी गई है। जनता दल इस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो RSS ब्राह्मण नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह बयान जोशी द्वारा JDS की पंचरत्न यात्रा पर कटाक्ष करने के जवाब में कहा कि इसके बजाय एक नवग्रह यात्रा शुरू की जानी चाहिए थी। कुमारस्वामी ने यहाँ दशराहल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पंचरत्न यात्रा से इतर संवाददाताओं से कहा कि RSS ने नई दिल्ली में एक बैठक की थी और यह फैसला किया गया था कि 8 डिप्टी के साथ एक ब्राह्मण को अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। कुमारस्वामी ने कहा कि उनके पास डिप्टी CM संभावितों की सूची भी है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को RSS के झांसे में नहीं आना चाहिए। पुराने दिनों से 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक समाज को विभाजित करने में विश्वास करता है और इसने प्रसिद्ध श्रृंगार शारदा पीठ को भी नष्ट कर दिया। जोशी उसी श्रेणी के हैं। महात्मा गांधी को मारने से भी नहीं हिचकिचाया। इन विभाजनकारी ब्राह्मणों का महाराष्ट्र के पेशवाओं से सीधा संबंध है। मंगलुरु शहर की पुलिस ने 3 फरवरी को मंगलुरु में एक आभूषण की दुकान में एक कर्मचारी की हत्या में शामिल संदिग्ध व्यक्ति का CCTV फुटेज जारी किया है। हत्या की जांच प्रगति पर है। पुलिस ने CCTV में दर्ज फुटेज का सत्यापन किया है। आसपास के इलाकों और फुटेज जारी कर संदिग्ध के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति सोना खरीदने की आड़ में दुकान पर आया था। बाद में दुकान के अंदर अकेले स्टाफ राघवेंद्र आचार की चाकू मारकर हत्या कर दी। 31 वर्षीय एक महिला को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL पुलिस ने 3 फरवरी को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बम का डर पैदा करने और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी पर हमला करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मानसी सतीबैनू के रूप में हुई है, जो केरल के कोझिकोड की निवासी हैं और उसे इंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता जाना था। घटना सुबह 8:15 से 8:40 के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने CISF अधिकारी संदीप सिंह के बयान के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर उसने हमला करने की कोशिश की थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अडानी मामले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया है। इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवाल उठा रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स SBI और LIC ने खरीदे उसकी JPC के जरिए जांच हो। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच होना जरूरी है। इन पर दबाव किसका था? जब तक JPC के जरिए जांच नहीं होगी तब तक इसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए जांच होनी चाहिए। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, देश का हर वर्ग चिंतित है, लेकिन सरकार पर्दा डाल रही है। अडानी कहते हैं यह मुझ पर नहीं राष्ट्र पर हमला है। वह राष्ट्र कब से हो गए? हमारे राष्ट्र बापू हैं। किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरी साख रख दी जाए तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC जांच चाहते हैं। सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। सरकार की पोल खुल गई है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का नेपाली समुदाय सुप्रीम कोर्ट की अप्रवासी बताने वाली टिप्पणी से नाराज है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सिक्किम के निवासियों के लिए इनकम टैक्स छूट देने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी और अपने आदेश में कोर्ट के सिक्किम के नेपालियों को विदेशी मूल का बता दिया था और कहा था कि ये लोग सिक्किम में आकर बस गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद एक तरफ जहां प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है, वहीं राज्य सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन को लेकर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर नई चिंता हो रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि सिक्किम के नेपालियों पर अदालत के अवलोकन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद उनके शव को कराची में दफनाया जाएगा। रविवार को उनका निधन हो गया था। इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने परवेज के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस पर बीजेपी ने शशि थरूर पर हमला बोला है। थरूर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस पर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन को लेकर किए गए ट्वीट में उन्हें शांति के लिए असली ताकत बताने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा लगातार हमला कर रही है। भाजपा के वार का पलटवार करते हुए थरूर ने एक ट्वीट किया और लिखा, अगर मुशर्रफ भारत के लिए अभिशाप थे तो 2003 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने उसके साथ युद्ध विराम पर बातचीत क्यों की और 2004 में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर क्यों किए? क्या उन्हें तब एक विश्वसनीय शांति साथी के रूप में नहीं देखा गया था? थरूर ने रविवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर शोक व्यक्त किया था। थरूर ने कहा था कि मुशर्रफ, जो कभी भारत के कट्टर दुश्मन थे, 2002 से 2007 के दौरान शांति के लिए असली ताकत बन गए थे। पुराने लखनऊ स्थित वार्ड नंबर 36 तिलकनगर कुंडली रकाबगंज की वर्तमान पार्षद सादिया रफीक के पितामह पूर्व पार्षद रफीक अहमद ने इस कड़ाके की ठंड में पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी लगभग 1500 कंबलों का वितरण बगैर किसी भेदभाव के सभी जाति व धर्म के गरीबों में किया। इस कंबल वितरण बुजुर्ग महिलाओं ने कंबल प्राप्त करके वर्तमान पार्षद सादिया रफीक व उनके पिता पूर्व पार्षद रफीक अहमद को दुआएं देकर उनका धन्यवाद दिया। इस मौके पर ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना रशीद फिरंगी महली सहित अमन शांति समिति की अध्यक्ष व याहियांगास के पोस्ट वार्डन मोहम्मद इमरान कुरैशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लखनऊ जफर खान की रिपोर्ट। 12 में फिर हमारे बेटे मोहम्मद आदिल ने तिलकनगर कुंडली रकाबगंज से चुनाव भारी मतों से निर्दलीय उम्मीदवार के उसमें जीता चुनाव। 2017 में हमारी छोटी बेटी सादिया रफीक, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तिलकनगर कुंडली रकाबगंज से भारी मतों से उसने भी चुनाव जीता। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्त जनता के बीच में हर वक्त हर समय शामिल रहते हैं। हमारी क्षेत्र की जनता ने जो इज्जत और जो सम्मान दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से अपनी क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है, जहाँ से हम चुनाव जीत के आते हैं और वहाँ से हर आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है, और ख़ास करके मुस्लिम जी, जो यहाँ से
हमारे जो कट्टर भाजपा के लोग हैं वो भी हमको इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत देते हैं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और अपनी क्षेत्र की जनता की अगर हम जिंदगी भर भी सेवा करें तो भी उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। यूपी के हमीरपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने देश के नामी उद्योगपति गौतम अडानी को भ्रम से दूर रहने की सलाह देते हुए रामचरितमानस पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए राम भक्तों का विरोधी करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने बुंदेलखंड को प्रथम राज्य बनाने की तरफदारी की। फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने गौतम अडानी के विषय में बोलते हुए कहा कि उनकी जांच चल रही है, जांच के बाद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन गौतम अडानी ने अपने ऊपर हुए हमले को भारत पर हुआ हमला बोला। यह गलत है, गौतम अडानी से भारत नहीं है, इसीलिए उनको यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए। अब भारत पर कोई हमला नहीं कर सकता। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अब अडानी का पूरा विषय जांच के दायरे में है, इसलिए मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि कल निर्मला जी का भी बयान आ गया अडानी को लेकर के कि वो एक आकलन चल रहा है, तो आकलन होने दीजिए। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ, मुझे गौतम अडानी की एक बात बहुत खराब लगी थी। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है। ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता, भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता मुगलों के शासन काल में भी अक्षुण्ण रही है, और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये मानती हूँ कि गौतम का ये कहना कि मुझ पर हमला, भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है, और इस भ्रम का उसको इलाज कर लेना चाहिए। हम तो अपने संघ प्रमुख को भगवान की जगह लिखते हैं, इसलिए उनके बयान पे मैं टिप्पणी कर नहीं सकती। लेकिन ये सही है कि समाज व्यवस्था अलग है और धर्म व्यवस्था अलग है। धर्म व्यवस्था में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चाहिए सुपाके तो पंडिता समदर्शिना, ये कहा गया है कि सबको समदर्शी भाव से देखना है। और ये जो कार्य विभाजन है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उसमें जाति प्रथा उद्भूत हुई है, इसलिए उन्होंने मतलब उनके बारे में तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकती हूँ। हम लोग संघ प्रमुख के बारे में टिप्पणी नहीं करते उनके वक्तव्य पे, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि धार्मिक व्यवस्था में हमने सबकी समानता मानी है। मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया, तो इसलिए संत कबीर को हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने माना। तो इसलिए हम लोग धर्म व्यवस्था को अलग और समाज व्यवस्था को अलग रख के रहे। कंफ्यूजन हो गया इस्लाम के कारण। इस्लाम में धर्म व्यवस्था और समाज व्यवस्था एक है, तो उससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म व्यवस्था अलग है और समाज व्यवस्था अलग है। समाज व्यवस्था में जाति भेद, जाति प्रथा है, धर्म व्यवस्था में नहीं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और 1999 में कारगिल युद्ध के मुख्य सूत्रधार रहे जनरल परवेज मुशर्रफ के पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान से दुबई से स्वदेश लाया जाएगा और कराची में उन्हें सुपुर्दे खाक दफन किया जाएगा। बता दें कि वर्षों तक बीमारी से जूझने के बाद दुबई के एक अस्पताल में रविवार को मुशर्रफ का निधन हो गया था। वह 79 वर्ष के थे। वह 2016 से यूएई संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे। पाकिस्तान समाचार चैनल जियो टीवी की खबर के अनुसार एक विशेष विमान से मुशर्रफ का पार्थिव शरीर पाकिस्तान लाया जाएगा। खबर के अनुसार यूएई में पाकिस्तान दूतावास ने मुशर्रफ के पार्थिव शरीर को उनके परिवार के अनुरोध पर पाकिस्तान भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी किया है। मुशर्रफ की पत्नी सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल और बेटी आयला उनके पार्थिव शरीर के साथ पाकिस्तान आएंगे। मुशर्रफ को कराची के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। परिवार ने इसकी पुष्टि की है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बॉलीवुड के खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्म रिलीज के पहले ही फैंस को लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। अब समाचार खेल जगत के। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को मिला जीत का मंत्र, भारत पर बनेगा दबाव। आखिर में समाचार बाजार के। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही सरकार। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में टैलेंट फाउंडेशन वर्कशॉप का उद्घाटन। बिदरी कारीगर शाह रशीद अहमद कादरी को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। कुमारस्वामी का दावा, जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रहा ISS। मंगलूर पुलिस ने आभूषण की दुकान के कर्मचारियों की हत्या करने वाले संदिग्ध का CCTV फुटेज जारी किया। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने किया संसद में जमकर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। सिक्किम में विरोध प्रदर्शन, सिक्किम कहे जाने पर भड़के नेपाल समुदाय के लोग, अमित शाह बोले नाराज ना हो।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।